100 to 300 mm। ਇਹ ਸਰਕਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋਫਾ ਦੀ ਐਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਫਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਫਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। When they're in some bedroom, these are the dimensions given. Suppose this is double bed or two single beds separated out. This is some study area. These are the side wardrobes. This is the cupboard. This is the main door, and this is the complete bedroom. Here is some again working counter has been provided in bedroom area. This is the clearance of the cupboard to the edge of the bed. It should be 750 to 800 mm minimum, ताकि कबर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ उसका पैनल या शटर उसके खुल सकन और वो बैड ਨੂੰ स्ट्राइक ना करन। और दूसरा बंदा अगर कोई बैड ਤੇ बैठा है तो उसनों वो अगर सपोज नीचे पैर करके बैठा है तो आप कबर्ड खोल के काम कर रहे हैं तो अपन वो स्ट्राइक ना करन। The distance between two beds, it should be minimum 600 mm, and the distance of the edge of the bed to the study table edge, it should be 750 mm minimum, जिस विच के जो भी उत्थे कोई रीडर है वो अपनी चेयर पिछे कर सकता है। जिस तरह आप देखा पिछे चेयर नू अगर वो खिसका के बैठेगा तो दिस डिस्टेंस शुड बी 130 mm, तो 130 mm चेयर अपनी पीछे कर सकता है। तो चेयर पीछे करेगा, बैठेगा और चेयर आगे करेगा। और अगर बेड से कोई बंदा पैर लटका के बैठा भी है तो उसनों स्ट्राइक ना करे, ये ना हो उसके पैरों में आके चेयर वजे। तो ये आपां नूं ध्यान च रखना चाहिए कि ये डायमेंशनस मिनिमम आपां नूं प्रोवाइड करनियां है। अगर इस बैड के अपोजिट कोई काउंटर लगे है, सपोज कोई स्टडी काउंटर है या कुछ भी उत्थे कोई वर्किंग काउंटर है, दिस डिस्टेंस शुड बी 1000 मिनिमम, ताकि अगर उत्थे कोई काम कर रहा है, सपोज उत्थे कोई ड्रॉज है, ये ड्रॉज ओपन कर रही है, ठीक है, इसी को सामान निकाल रहा है और इधरों कोई पैसर बाय इज कमिंग तो उस आपस एक दूजे को स्ट्राइक ना करन। अगर कोई बैड तो इतों पास होके सीधा ऊपर जाना चाहता है, उत्थे खड़ के उहदे कोल सामने कोई स्टैंडिंग पोजीशन सिटिंग पोजीशन कोई बैठा है, द डिस्टेंस शुड बी 500 मिनिमम। कि अगर बेड तो आप सामने खड़ते हैं तो आप और अपनी आर्म्स आप स्ट्रेच करते हैं तो वी आर इन अ पोजीशन ऑफ 500 mm स्ट्रेच। So in this way, these are some of the dimensions we have which we have to take care of when we are going to design our anthropometric furniture or the design data. Now we'll be going to discuss what we have learned today till now. सब तो इंपॉर्टेंट जो आप इस स्टडी किया दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोमेटिक्स, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन डायमेंशंस। Okay, anthropometry is the science that deals with the measurement of size, mass, shape and inertial properties of the human body। जिस तरह हम आप सारा स्टडी कर लिया तो थोड़ा इसका मतलब सारा समझ आ गया होगा कि उस उठना बैठना, उसका मूवमेंट्स, चलना फिरना, वो सारा कुछ है। इवन हिज वेट, हाइट, लेंथ और स्ट्रेचर और हाइट और स्ट्रेच ऑफ द बॉडी। जिस तरह ये आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर, बहुत फेमस आर्किटेक्ट इंडियन अपने जिन्होंने चंडीगढ़ डिज़ाइन किया है, उन्होंने ये ह्यूमन प्रपोर्शन के ऊपर एक ग्राफ दिता था अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मॉडलर डायमेंशनस। तो ये इस उन्होंने सारा यही रखा है कि जब वैन अ पर्सन इज़ इन स्टैंडिंग पोजिशन बाय रेजिंग हिज हैंड, what are the different dimensions which we have to take care in our mind when we are going to design some building component. Like this is the toe width, अंगूठे दी height, अपने एड़ी तक दी height, then up to knee to thigh, then waistline, stomach height, stomach to elbow height or the head, then this is the shoulder height, and then this is the elbow to the top of the middle arm, middle finger। और ये अकॉर्डिंग जिन्ना आजकल अपना मॉडलर फर्नीचर या मॉडलर डिज़ाइनिंग
ਈਵਨ ਟਾਈਲਸ, ਫਲੋਰ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਬਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਮੋਡਲਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੋਡਲਰ ਐਲਮੀਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਜਾਂ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲੌਕਸ ਉਸਦੇ ਰੈਪਲੀਕਾ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਔਰ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਮੋਡੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਿਕ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड एंथ्रोपोमेट्री जो अपना मेन है इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विद बॉडी डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स। कि आप फिजिकली सारा उसको एनालिसिस करना है बॉडी अपने फीचर्स नू, और उसके अकॉर्डिंग आप उन्होंने डायमेंशन और मेजरमेंट्स लैके ही आप कोई डिज़ाइन अपने स्टैंडर्ड्स आप तैयार करते हैं। और तीनों टाइप की इस आप मूवमेंट लेनी है। वैन द बॉडी इज़ इन स्टैटिक पोजिशन, जो खड़े हैं या बैठे हैं या रुके हुए हैं। वैन दे आर इन मोशन, आप अपनी आर्म स्ट्रेच कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, अपने पैर आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपना स्ट्रेच कितना होना चाहिए। और इन्होंने आप देखा सीगा कि अपने किन्ने टाइप की वेरीएशन आ सकती हैं। वन इज़ द ह्यूमन वेरीएशन, मे बी द हाइट, मे बी द वेड्थ, दैन एज वेरीएशन, छोटे हैं, दैन बड़े यंगर हैं और एल्डर पीपल हैं, दैन जेंडर मेल और फीमेल, दैन लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन शिफ्ट्स कि जिस तरह आप देखा कि टाइम के नाल या आने वाले 10 साल 15 साल बाद द एक्सपीरियंस अपना क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। लाइक हेयर जिस तरह तुम दसा थे कि हर 10 सालों में उन्होंने वेट जोड़े अमेरिकन पीपल है या यूरोप है वो 1 सेंटीमीटर उन्होंने हाइट इंक्रीज़ हो रही है और 2 तो 3 किलो तक उन्होंने वेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले डिसाइड करते हैं कि अपना फर्नीचर या अपनी जी कंडीशन आर्किटेक्चरल एलीमेंट्स आप किस टाइप के डिज़ाइन करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नवे कुछ भी टैक्नोलॉजी या नवा डिज़ाइन आस्पैक्ट्स आप दे सकते हैं। और डिज़ाइन प्रोसीजर कुछ भी डिज़ाइन करने वास्ते आपको एंथ्रोपोमैटिक किस तरह आप हेल्प लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोमैटिक मेजर्स दे डायरैक्टली कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड इंजीनियर एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन स्पैसिफिकेशंस। उन्होंने आप सिलेक्ट करते हैं कि की पोस्चर्स या किस टाइप की पोजीशंस आप बॉडी की वो काउंट करनी है। सपोज एक ऑफिस है तो उत्थे बंदे ने उस चेयर को पीछे करना है या चेयर ही बैठना है, ठीक है। या किचन च है तो उन्हें स्टैंडिंग पोजीशन ज़्यादा कम करना है और मूवमेंट उसकी अगे पीछे सारी मूवमेंट उसकी कंटिन्यूसली चारे पासे रोटेशन रही है। बैडरूम है उन्होंने बैड पर बैठना है या बैड तो कबड़ तक मूव करना है। तो इस टाइप आपको एरिया या उसकी पोजीशन स्टडी करनी पैंदी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर उसकी प्रपोर्शनस डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर ये भी देखना पैंदा कि एक पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन वास्ते है या फुल रेंज वास्ते है। और उससे आप नैसेसरी करैक्शन फैक्टर जिस तरह पिछे भी आप पहले आप काफ़ी स्टडी किए हैं उन्हें आप देखा कि +-2.5 और समथिंग कुछ इस टाइप की वेरिएशंस उन्होंने करैक्शन फैक्टर पहले लेते हुए हैं, ताकि अगर उथे थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू सम फिजिकल वेरिएशंस इन सम परसन टू परसन, तो वो आप करैक्शन फैक्टर के नाल अपने उस एडजस्ट हो सकन और उन्होंने सारे एडजस्ट कॉमन कंबाइन करके उन सारी स्पैसिफिकेशन दैन वी गो फॉर फिजिबिलिटी, यानी कि उसमें आप चैक करते हैं कि वो ऑटोमैटिक उस सारा कन्फर्म हो सके, अपना डिज़ाइन उस तरह तैयार हो सके। एंड दिस इज द एंथ्रोपोमैटिक डाटा वास्ते आ टेबल्स आप स्टडी किए, स्टैंडिंग पोजीशन एंड दैन सिटिंग पोस्चर्स। फिर आप ये भी देखा कि जो एंथ्रोपोमैटिक डाटा है इस डिज़ाइन शुड बी फॉर द एक्सट्रीम्स एंड इट शुड बी फॉर द एडजस्टेबल रेंज एंड इट शुड बी फॉर द एवरेज।
दैन वी स्टडीड अबाउट ऑप्टिकल वर्क जोन कि बैठन किसी ऑफिस काम करना है या किसी एरिया च कोई वर्किंग कंडीशंस काम कर रहा है बंदा तो किस टाइप के कंडीशन डायमेंशन चाहिए हैं, या जिस तरह चेयर हाइट है और स्टैंडिंग हाइट है, काउंटर ते कोई काम कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू प्रैशर जिस तरह ये देख सकते हो इतने नॉर्मल उन्हें कोई लिखा पढ़ी करनी है या उन्हें कोई खाना वगैरह खाना है, थोड़ा बहुत जोर है जितने उन्हें पूरा जोर लगा रहा है तो कोई जिस तरह हाथ में कोई प्रैशर पा रहा है, कोई चीज कुट रहा है जिस तरह जोर लगा रहा है पूरा, तो वो अकॉर्डिंग अपना वेट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਈ ਸਾਈਟ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। डिफरेंट पॉस्चर्स, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्ट्रैचिंग और इवन व्हील चेयर आप देख सकते हैं सिटिंग वास्ते। जो स्टैंडिंग है तो हाइट 150 mm टू 190 1.5 मीटर टू 1.9 मीटर, आई हाइट 1.4 टू 1.75 मीटर एंड शोल्डर हाइट 1.2 टू 1.5 मीटर। आर्म स्ट्रेच करके मूव करनी है। देन मैक्सिमम रीच अप इज़ 1.85 टू 2.10 मीटर, एक जनरल स्टैंडर्ड है। ऑब्लिक रीच अप इज़ 1.65 टू 2 मीटर एंड फॉरवर्ड रीच इज़ 1.3 टू 1.45 मीटर। व्हील चेयर की बैठने तो बाद मैक्सिमम हाइट जी आप लेने अप टू द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द परसन हु इज़ सिटिंग ऑन दैट व्हील चेयर इज़ 1.2 टू 1.25 टू 1.45 मीटर। जो अपनी आर्म स्ट्रेच कर रहा था या अप कर रहा है 1.47 या 1.58 मीटर टू 1.9 मीटर इज़ द मैक्सिमम हाइट। किसी काउंटर पे बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, अलग अलग पॉस्चर्स, पैरा पार बैठा है, कोई योगा फॉर्म च, कोई एक्सरसाइज फॉर्म च, और नीचे कबर चों सिटिंग फॉर्म च कुछ ले रहा है तो आपको इन्नी क्लीयरेंस भी घट्टो घट्ट चाहिए अपने दूसरे किसी फर्नीचर तो जिमें कि 1125 mm। डाइनिंग टेबल ते खा रहे हैं, कोई 3 बंदे बैठे हैं तो उन्होंने सिटिंग हाइट या उन्हें अपना फर्नीचर पीछे करके चेयर फिर वो डाइनिंग की सीट से अपनी आगे बैठेगा तो ईवन वो डिस्टेंस भी आपको ध्यान रखना पैंदा है। लाइक हेयर 130 mm जो डाइनिंग ते खा रहे हैं पूरी स्ट्रैच है, कोई सामान लेके आ रहे हैं तो डोर ओपनिंग है, लिविंग एरिया बैठे हैं तो उत्थे मूवमेंट है उन्होंने हरेक टाइप नाल तो रेडियस जो सारा रेडियस कवर होना चाहिए। इट शुड बी 2600 टू 3000 mm। और जो कोई परसन कोई ट्रे वगैरह कुछ खान पीन का अरेंजमेंट लेके आ रहा है तो इट शुड बी 850 mm क्लीयरेंस शुड बी मिनिमम, और 600 फ्रॉम द वॉल अप टू द एज ऑफ द सोफा सिटिंग। और टेबल के सेंटर तो भी सोफा का फ्रंट 600 mm घट्टो घट्ट होना चाहिए। और बैडरूम वगैरह के 750 mm का गैप घट्टो घट्ट फ्रॉम द कबर टू द वन एज ऑफ द बैड। दैन बैड उस तो बाद 2 बैडों के घट्टो घट्ट 600 mm ताकि एक बंदा उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई बैठ रहा है, वो ईजिली मूवमेंट उसकी हो सके। और उत्थे भी अगर कोई काम करने वास्ते कोई क्लीयरेंस जगह चाहिए तो इट शुड बी 1000 mm। नो दिस वॉज ऑल अबाउट एंथ्रोपोमेटिक्स, और उम्मीद है कि इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9914410599। थैंक यू वेरी मच।